guys, this is Zoya Chowdhury and you are watching me on YouTube channel Simplified Education. In this video, we are going to study the fifth topic of the logical reasoning, that is formal and informal fallacies. This logical reasoning is unit number 6 from NTA NET and SET exam paper 1. इसके अलावा अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, then also logical reasoning is very important. Under this topic, we are going to study the following points. That is, first, meaning of the fallacy, then types of the fallacies, formal and informal. After that, types of the formal fallacy and then types of the informal fallacy. This last point is quite lengthy topic, so minimum 2 lectures will be required for this. You can join our Telegram channel and Facebook page Simplified Education with the link given below into the description box. And if you understand my teaching, please subscribe my channel so that you will be notified with my upcoming videos. First, we need to understand what is the meaning of fallacy. Fallacy in simple words, suppose we look at anything on superficially. We think that this point is correct, means we feel that ये चीज़ सही है, but in reality that thing is false. So whatever wrong assumptions we are having towards that particular thing is called as the fallacy. मतलब कोई भी चीज़ हमको लगता है कि ये सही है, लेकिन रियल में वो सही नहीं होती है, so वो wrong assumption होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? fallacy बोलते हैं. And in the case of arguments, fallacy means what? Anything which is false or the bad argument, that is called as the fallacy. Now we can have the fallacy by two ways. First is that it may be by the invalid form of the conclusion. Now what is the invalid form of the conclusion? मतलब जब भी conclusion is not following the premises in proper way, we are going to call it as a invalid form of conclusion. So this is one way of fallacy. Or maybe by the content of the conclusion which we derive from the premise. मतलब conclusion premises को follow तो करता है, but content wise it is wrong. मतलब whatever conclusion we are drawing from the premises, वो premises के through सही होता है, but in reality that conclusion is wrong. So that kind of conclusion or that kind of argument is called as the fallacy. Okay, so these are the two ways of having the fallacy. In simple words, we can call the fallacy as mistaken beliefs based on the unsound argument. Unsound argument मतलब क्या? The arguments which are not strong, or we can say the arguments there is no proper connection between the premises and conclusion. Such kind of arguments we are going to call it as a unsound arguments. Okay, so ये तो हो गया meaning of the fallacy. Fallacy क्या होता है? After that we are going to have the two types of the fallacies. First, that is formal fallacy, and second, informal fallacy. Okay. Now first we will see what is the meaning of formal fallacy. फॉर्मल फैलेसी मतलब क्या होता है कि उसमें आइदर स्ट्रक्चर या फिर फॉर्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज रॉन्ग. सच काइंड ऑफ फैलेसी वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ फॉर्मल फैलेसी. मतलब इट इज द वन विच इन्वॉल्व एन एरर in the form, arrangement or the technical structure of the argument. मतलब एक तो वो वैलिड होता है, इनवैलिड होता है, ट्रू होता है, फॉल्स होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ी है द स्ट्रक्चर ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्ग्यूमेंट. सो दैट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट वी आर गोइंग टू कॉल इट एज अ फॉर्मल फैलेसी. हम जब भी एग्जाम्पल देखेंगे यू विल कम टू नो इन अ बेटर वे. लेट अस सी द एग्जाम्पल. सी दिस इज अवर प्रीमाइस 1. व्हाट इज दैट? ऑल कैट्स आर ब्लैक. ठीक है, सभी कैट्स ब्लैक है. Premise 2, that is all dogs are black. Okay, now what is the conclusion drawn from this? That is all cats are dogs. Okay, so this is not the possible argument we can say. मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर में रॉन्ग हो गया है. ऑल कैट्स आर ब्लैक, ऑल डॉग्स आर ब्लैक, बट इसमें से हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि ऑल कैट्स आर डॉग्स.
Okay, if we draw the Venn diagram, then we will come to know that this is not only one type of conclusion. मतलब ये एक ही conclusion नहीं हो सकता. Okay, some cats are dogs और some dogs are cats, ऐसे कुछ भी possibilities है, but एक ही conclusion हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते कि all cats are dogs. Conclusion कैसे होता है? It should follow the all possibilities of the premises. That is not happening. If we draw the Venn diagram, we will come to know that this is the wrong conclusion based on this premises. Let us draw the Venn diagram. Okay, first we will draw the circle for the black one. ठीक है, ये black का एक circle हो गया. Now what is the first premise? That all cats are black. मतलब cats किसके अंदर आएगा? ये बड़े वाले circle के अंदर black के. See, all cats are black. ठीक है, ये तो हो गया first premises. Now what is the second one? All dogs are black. मतलब ऑल डॉग्स आर ब्लैक. तो अभी ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते कि ऑल कैट्स, मतलब ये कैट्स वाला सर्कल है, इट इज़ टोटली इनसाइड द डॉग सर्कल. ऐसे हम नहीं बोल सकते. आइदर सम कैट्स आर डॉग्स और सम डॉग्स आर कैट्स, ऐसे कुछ ना कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट इससे हम लोग डायरेक्टली एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि ऑल कैट्स आर डॉग्स. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मल फैलेसी. मतलब difference or the mistake is there in the formation or the structure of the argument, that is called as the formal fallacy. ये तो हो गया meaning of the formal fallacy. Now we will see what is the meaning of informal fallacy. Informal fallacy में क्या होता है कि content ही गलत होता है. ऐसा हो सकता है कि प्रीमाइस कंक्लूजन इज फॉलोड बाय द प्रीमाइसेस, बट वॉट एवर कंक्लूजन वी आर ड्रॉइंग, दैट कंक्लूजन इज रॉन्ग ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट. Okay, so we can say it is the matter of unclear expression. Means the focus is on the meaning of the argument. Meaning of the argument is not proper. Meaning of the argument is false in the case of informal fallacy. मतलब if we compare the extent of mistake in the formal and informal fallacy, formal में क्या होता है, थोड़ा सा mistake होता है, मतलब सही होता है, but structure में गड़बड़ी होती है. So that kind of mistake we can say it is up to some extent. But informal में क्या होता है कि content wise ही वो गलत हो जाता है. So informal fallacy में extent of mistake is more. Okay, see now we will see with the example. फर्स्ट प्रीमाइस में क्या बोला है? अ फेदर इज लाइट. ओके, सो यहाँ पे लाइट का मीनिंग क्या है? इट इज लाइट बाय वेट. वजन के हिसाब से वो लाइटर है. ठीक है, नाउ विच इज द सेकेंड वन? दैट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी डार्क. मतलब यहाँ पे लाइट का मीनिंग क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ शेड ऑफ द कलर. हम लोग बोलते हैं लाइट एंड डार्क. ठीक है, नाउ व्हाट इज द कंक्लूजन? देयरफॉर अ फेदर कैन नॉट बी डार्क. अभी ये लाइट का मीनिंग यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है. सो वी कैन नॉट ड्रॉ द कंक्लूजन. मतलब ये कंक्लूजन हम लोग बोलेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमाइस ये तो ठीक है, बट मीनिंग वाइज दिस कंक्लूजन इज कम्प्लीटली रॉन्ग. मतलब इसका कंटेंट ही गलत है. सो सच काइंड ऑफ फैलेसीज वी कैन कॉल इट एज अ इनफॉर्मल फैलेसी. मतलब एक ही वर्ड्स के दो मीनिंग्स होते हैं या फिर कुछ अलग कंटेंट अलग गलती होती है, बट दैट कंप्लीट एक्सप्रेशन इज रॉन्ग. कंप्लीट एक्सप्रेशन इज अनक्लियर एक्सप्रेशन इन द केस ऑफ इनफॉर्मल फैलेसी. ये तो हो गया मीनिंग ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसी. नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ फॉर्मल फैलेसी. बेसिकली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द फॉर्मल फैलेसी. First we are going to see on which basis we are going to divide. Means what is the criteria for the classification of the formal fallacy. See, first formally valid argument and formally invalid argument. मतलब एक तो valid होता है लेकिन वो गलत होते हैं. मतलब premises are false. Okay, valid है but premises are false, so that is the formal fallacy. एंड यहाँ पे क्या होता है कि इनवैलिड आर्ग्यूमेंट, मतलब आर्ग्यूमेंट इनवैलिड है चाहे फॉल्स प्रीमाइसेस हो या फिर ट्रू प्रीमाइसेस से. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस वैलिड एंड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स वी आर गोइंग टू हैव द थ्री टाइप्स. विच आर द थ्री टाइप्स? फर्स्ट, फॉल्स बट वैलिड. यहाँ पे
false and invalid, and true but invalid. Okay, we will see this with the help of example. First let us see फॉल्स बट वैलिड. यहाँ पे आपको एक सवाल आ सकता है कि यहाँ पे ट्रू एंड वैलिड क्यों नहीं है. इफ़ इट इज़ ट्रू एंड इफ़ इट इज़ वैलिड इवन, मतलब वो ट्रू भी है और वैलिड भी है, तो वो फैलेसी में नहीं आएगा ना, वो तो 100% सही हो जाएगा. सो इट विल नॉट कम अंडर द फैलेसी. ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, दैट इज फॉल्स बट वैलिड. नाउ व्हाट इज दैट? सी, ऑल मेन आर ग्रीन, that is the first premise, and Socrates is a man. Okay, after that what is the conclusion? So Socrates is green. ठीक है, मतलब ये वैलिड किस पॉइंट से है वो पहले समझ में आना चाहिए. ये फर्स्ट प्रीमाइस है कि ऑल मेन आर ग्रीन. ठीक है, मतलब मेन का हम लोग सर्कल निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, देन इट विल कम अंडर द ग्रीन. ग्रीन के अंदर आएगा. And after that we are going to say that Socrates is a man, so we are going to say that Socrates is green. But these two premises are false. All men are green. ये premise क्या है? false है. इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि ये टेक्निकली वाइज हम लोग बोलते हैं कि कंक्लूजन इज फॉलोड बाय द प्रीमाइसेस. सो फ्रॉम दैट एंगल इट इज वैलिड आर्गुमेंट, बट दीज प्रीमाइसेस आर फॉल्स, हेंस वी आर गोइंग टू से दैट दिस इज फॉल्स बट वैलिड. ठीक है, मतलब कोई भी अगर फॉल्स भी होता है या फिर इनवैलिड कोई भी एक चीज़ है, देन इट इज़ अ काइंड ऑफ फैलेसी. दैट्स वाई दिस इज अवर फर्स्ट टाइप, दैट इज फॉल्स बट वैलिड थिंग. ठीक है, नाउ वी विल सी द सेकेंड वन. नाउ यहाँ पे क्या है? इनवैलिड आर्ग्यूमेंट. मतलब दोनों एग्जाम्पल में वी आर गोइंग टू हैव द इनवैलिड आर्ग्यूमेंट. तो इनवैलिड है तो वो तो गलत ही हो गया, मतलब फैलेसी में आ गया. यहाँ पे एक क्या है? फॉल्स है. फॉल्स मतलब फॉल्स प्रीमाइसेस, और यहाँ पे क्या है? ट्रू. ट्रू प्रीमाइसेस ट्रू है बट दैट इज इनवैलिड. और यहाँ पे प्रीमाइसेस भी फॉल्स है एंड इट इज इनवैलिड, मतलब पूरी की पूरी तरह से दैट इज कमिंग अंडर द फैलेसी, मतलब 100% रॉन्ग. नाउ सी द एग्जाम्पल. सी फर्स्ट प्रीमाइस में क्या बोला है उन्होंने? सम मेन आर ग्रीन. ठीक है, सम मेन आर ग्रीन एंड सॉक्रेटिस इज अ मैन. अभी उन्होंने यहाँ पे सम लिखा है, सम मेन आर ग्रीन, तो सम में ही वो सॉक्रेटिस आता है या नहीं आता है, दैट वी डोंट नो. तो उसमें से हम लोग डायरेक्टली ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि सो सॉक्रेटिस इज अ ग्रीन, बिकॉज कंक्लूजन ऐसा होना चाहिए इट इज़ गोइंग टू फॉलो ऑल द पॉसिबिलिटीज़. तो सभी के सभी पॉसिबिलिटीज़ नहीं फॉलो करते हैं. सम में जो सम नॉट आर ग्रीन है, सम नॉट आर नॉट ग्रीन, ऐसे मतलब जो कोई भी ग्रीन नहीं है, जो मेन ग्रीन नहीं है, उसके अंदर भी सॉक्रेटिस आ सकता है. तो वी आर गोइंग टू हैव दिस इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट तो पहले फॉल्स ही है, एंड दैट कंक्लूजन इज ऑल्सो नॉट फॉलोइंग 100% विद द प्रीमाइसेस. इसीलिए वो क्या है? इसीलिए वो इनवैलिड भी है. ठीक है, मतलब प्रीमाइसेस वाइज इट इज फॉल्स एंड वैलिडिटी वाइज इट इज इनवैलिड. ओके, सो दिस इज सेकेंड, फॉल्स एंड इनवैलिड. एंड थर्ड वन इज दैट ट्रू, मतलब प्रीमाइसेस आर ट्रू बट दैट इज इनवैलिड. अभी प्रीमाइसेस कैसे ट्रू है वो पहले देखेंगे. सम मैन आर मोर्टल. ठीक है, कुछ मैन मोर्टल है एंड सॉक्रेटिस इज अ मैन. तो फ्रॉम दिस वी आर गोइंग टू ड्रॉ द कंक्लूजन दैट सॉक्रेटिस इज मोर्टल. सो वी कैनॉट से 100%. यहाँ पे जो मोर्टल नहीं है मैन, उसमें भी सॉक्रेटिस आ सकता है. इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि दिस कंक्लूजन इज नॉट कंप्लीटली फॉलोड बाय दिस प्रीमाइसेस, हेंस दिस इज इनवैलिड, बट दिस प्रीमाइसेस आर ट्रू. Okay, so this is the type of true but invalid fallacy, formal fallacy. ठीक है, so these are the 3 types of formal fallacies we have seen. In the next video we will see the types of the formal informal fallacies. Now we have seen the formal fallacies. Okay, thanks for watching this video. If you have any question you can ask into the comment box, and for the next video, till then stay with us.